Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville BBA College, Wapin. I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. So we will continue our risk measurement techniques, and next method is what? Certainty equivalent approach. Short form is what? CE approach. Certainty equivalent approach. That is what CE approach. What is CE approach? Now, certainty equivalent approach is one of the risk analysis techniques under which risk is incorporated by discounting risk cash flow at risk free rate. इट मीन्स जो भी यहाँ पे कैश फ्लो आएगा वो कैश फ्लो को पहले कन्वर्ट करना इनटू रिस्कलेस कैश फ्लो. ओके, यानी वॉट एवर रिस्की कैश फ्लो इज गिवन ना, वो रिस्की कैश फ्लो को कन्वर्ट करना फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्कलेस कैश फ्लो से, एंड देन रिस्कलेस कैश फ्लो को डिस्काउंट करना एट सर्टन रिस्क फ्री रेट. That is what under CE approach. So under the CE approach, so this CE approach is one of the risk analysis technique under which risk is incorporated by discounting the riskless cash flow at a risk-free rate. So here it incorporate the risk by converting the risky cash flow into riskless cash flow. तो मैंने बोला ना कि जो भी हमारे पास रिस्की कैश फ्लो होगा, दैट इज अनसर्टेन कैश फ्लो होगा, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रिस्कलेस कैश फ्लो. ओके, एंड हाउ इट इज कन्वर्ट? रिस्कलेस कैश फ्लो इज व्हाट? रिस्की कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट. यानी जो भी सीई का रेट दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करना विद द रिस्की कैश फ्लो, सो वी कैन गेट द रिस्कलेस कैश फ्लो. Clear? And certainty equivalent, how we can get? That is riskless cash flow divided by risky cash flow. But in some certainty equivalent coefficient it is given. हम लोग को ये फाइंड आउट नहीं करना होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दे ही देते हैं. ओके, आइदर फॉर्मूला से फाइंड करना होगा, बट ये रिस्कलेस एंड रिस्की कैश फ्लो आपको फाइंड आउट करना नहीं है. Okay, so what is the main concept of certainty equivalent approach? ये certainty equivalent approach एक one of the risk measurement technique है कि जहाँ पे risk incorporate है by discounting the riskless cash flow by the risk free rate. And riskless cash flow, how we can get? It can get by converting the risky cash flow into riskless cash flow. And the riskless cash flow is what? Risky cash flow into certainty equivalent coefficient. And the certainty equivalent coefficient is what? Riskless cash flow divided by risky cash flow. Simple, sir. Now, what are the steps to calculate the NPV using the CE approach? Okay, ultimately प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है बेस्ड ऑन अल्टीमेट एनपीवी, बट विद द हेल्प ऑफ सी अप्रोच हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द सर्टन कैश फ्लो. नाउ हियर सर्टन कैश फ्लो इज नथिंग बट रिस्कलेस कैश फ्लो पहले फाइंड आउट करना है. एंड रिस्कलेस कैश फ्लो किससे फाइंड आउट होगा? दैट इज रिस्की कैश फ्लो इनटू सीई कोएफिशिएंट. सेकंड स्टेप में calculate net present value of the certain cash flow using the risk free discount rate. in short, जब भी हम लोग डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ये मेथड में कौन सा रेट यूज करना है? रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करना है. क्लियर यहां तक? सो व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एक रिस्क मेजरमेंट टेक्निक है जहां पे रिस्क it is incorporated by discounting the riskless cash flow at risk-free rate. It means it incorporate the risk by converting the risky cash flow into riskless cash flow. And how we can convert? Riskless cash flow is what? Risky cash flow multiplying with certainty equivalent coefficient. And certainty equivalent coefficient is what? Riskless cash flow divided by risky cash flow. Okay, and how we can calculate the NPV by using this method? First we have to calculate the certain cash flow. Certain cash flow, it is also called as what? That is riskless cash flow.
And riskless cash flow and certain cash flow, how we can get? That is risky cash flow multiplying with certainty equivalent coefficient. And second step में we have to calculate the net present value of the certain cash flow by using risk-free rate for discounting the cash flow. Clear? Now this is a format. Your cash flow after tax and CE फैक्टर्स इट इज गिवन सम्स में ये 3 दे देंगे यार कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड सीई समटाइम ये सीई फैक्टर्स नहीं देंगे तो कुछ फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलेंगे और हम लोग को सीई फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है बट बहुत इजी होता है ओके तो यार कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज गिवन एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सीई फॉर्मूला से फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग सीई को फाइंड आउट करेंगे So next column क्या बनेगी? That is adjusted cash flow. It is also called as what? Riskless cash flow. So riskless cash flow कैसे मिलेगा? Cash flow multiplying with CE factors. Cash flow multiplying with CE factors. So we can get riskless cash flow. Now whatever riskless cash flow आएगा ना उसको multiply करना with the present value. तो यहाँ पे कौन सा रेट लेना है? यहाँ पे कौन सा रेट लेना है? दैट इज व्हाट रिस्क फ्री रेट लेना है. यहाँ पे कौन सा रेट लेना है? रिस्क फ्री रेट लेना है फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो. ओके सो हमको क्या मिल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो. टोटल करेंगे तो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो यहाँ पे खाली एक डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है? जो भी कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द सीई कोएफिशिएंट फैक्टर्स सो वी कैन गेट एडजस्टेड कैश फ्लो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिस्कलेस कैश फ्लो. उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिस्काउंट फैक्टर्स. सो यहाँ पे डिस्काउंट कौन सा रेट लेना है? दैट इज रिस्क फ्री रेट. सो वी कैन गेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो हियर टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट सो वी कैन गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू. Except reject same, NPV is positive that is greater than 0 except NPV is less than 0 यानी negative तो reject. Equal to 0 यानी may or may not be accepted. Clear? Then next is what? Merits. Now merits same ही है जो हम लोग RADR में पढ़ा. So it is simple to calculate and easy to understand. Then it consider the time value of money. Now time value of money का कंसेप्ट तो आता ही आता है बिकॉज जो यहाँ पे फ्यूचर का कैश फ्लो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रेजेंट वैल्यू. सो दिस मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. थर्ड, इट इनकॉर्पोरेट द रिस्क बाय कन्वर्टिंग द रिस्की कैश फ्लो इनटू रिस्कलेस कैश फ्लो. रिस्की कैश फ्लो को कन्वर्ट करता है इनटू रिस्कलेस कैश फ्लो. फोर्थ, जो भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट है इट मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर्स. ओके एवरी ईयर के लिए सीई फैक्टर्स क्या होता है? अलग रहता है. सो इट इज वन ऑफ द एडवांटेज. सो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर्स. सो दिस आर द मेरिट्स ऑफ द सीई अप्रोच. क्लियर? सिंपल है, इजी है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, देन कन्वर्ट करता है रिस्की कैश फ्लो को इनटू रिस्कलेस कैश फ्लो में, एंड जो भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर्स है वो एवरी ईयर के लिए डिफरेंट रहता है. डीमेरिट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीई कोएफिशिएंट इट इज डिफिकल्ट टास्क. ओके बिकॉज सम्स में तो हम लोग को क्लियर कट समझ में आ जाता है कि सीई कोएफिशिएंट दे देते हैं या फॉर्मूला से यूज करना है, बट अल्टीमेटली रियल लाइफ में जो सीई कोएफिशिएंट को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क. एंड नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट इट इन्वॉल्व द सब्जेक्टिविटी. यानी आई एज अ मैनेजर मुझे लगा सीई फैक्टर्स ये रखना है तो मैंने ये रख दिया 8%. आपको लगता है 5% रखना है तो आपने 5 रखा. सो इट इज व्हाट? सब्जेक्टिविटी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, differentiate between the RADR method and the CE approach. Okay, so here this is a difference between RADR and the CE approach. So based on incorporation of risk. Okay, so RADR में risk कहाँ पे include है? It incorporate the risk by adjusting discount rate. हम लोग यहाँ पे RADR में कौन सा रेट लेते हैं? That is risk adjusted discount rate. So यहाँ पे जो भी रिस्क इनकॉर्पोरेट है बाय एडजस्टिंग द डिस्काउंट रेट. इन केस ऑफ सी अप्रोच इट इनकॉर्पोरेट द रिस्क बाय एडजस्टिंग द कैश फ्लो. ना बाय एडजस्टिंग द कैश फ्लो मतलब रिस्की कैश फ्लो को कन्वर्ट करना इनटू रिस्कलेस कैश फ्लो. यानी यहां पे हम लोग कैश फ्लो को एडजस्ट करते हैं
एंड यहाँ पे हम लोग किसको एडजस्ट करते हैं, दैट इज डिस्काउंट रेट को इन केस ऑफ आरएडीआर, दैट इज व्हाट इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिस्क. Second point, on the basis of discount rate, it uses RADR rate for discounting the cash flow ना, that is risk adjusted discount rate use करता है, that is addition of risk free plus risk premium. Okay, so it uses the RADR rate for discounting the cash flow, but here it uses risk free rate for discounting the cash flow. Okay, cash flow, on the basis of cash flow it uses risky cash flow, whereas it uses a riskless cash flow. So here there is a difference between RADR method and the CE approach. Clear all of you? So ये हम लोग को meaning, steps, format, accept reject rule, merits and the demerits. तो ये CE अप्रोच का भी थियरी एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द CE अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क, ओके, इवेल्युएशन टेक्निक करके. सो आरएडीआर मेथड एंड सीई इक्विवेलेंट अप्रोच थियरी में आता है. आइदर 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है. सो बी रेडी, थियरी प्लस सम्स ये मेथड में करना है, बिकॉज ये मेथड में सम्स बहुत छोटा सा होता है, बहुत कम, 1-2 सम्स करेंगे तो भी आपको आ जाता है, बिकॉज फॉर्मेट याद रखा, कौन सा रेट लेना है डिस्काउंट करने के लिए ये याद रखा, आपका आंसर आ गया. बाकी ये मेथड में सम्स हार्ड नहीं आते. क्लियर? चलो एक सम्स, अब ये सम्स कुछ 2018 में पूछा है 7 मार्क्स में, यही मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं. नाउ एक्स लिमिटेड is considering one of the two mutually exclusive project, that is project P and project Q. ना आपको वो पता है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यानी कोई भी एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, that is either project P या either project Q, which require cash outlay of rupees 5 lakhs and 7 lakh respectively. यानी outlay मतलब इन्वेस्टमेंट 5 lakhs पर प्रोजेक्ट P and 7 lakhs पर प्रोजेक्ट Q है. Now, the current yield on the government bond is 5%, which may be considered as what? Risk-free rate. Then the risk premium is 3%. The expected net cash flow and their certainty equivalent are as follow. Okay, so here is given project P का cash flow and the certainty equivalent factor is given. Likewise for project Q, cash flow and the certainty equivalent is given. So we have to give the answer of this 3 question. Which project should be accepted? Which project is riskier and why? And if RADR method is used, then which project would be appraised with the higher rate and why? So पहले तो हम लोग को एनपीवी कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ सीई अप्रोच एंड आंसर देना कि कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है. देन बी एंड सी, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंक्लूजन आंसर, नो कैलकुलेशन, डायरेक्टली कंक्लूजन. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सीई अप्रोच. क्लियर? चलो फर्स्ट इज व्हाट? प्रोजेक्ट पी. फर्स्ट प्रोजेक्ट P के लिए कैलकुलेट करते हैं. ना फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे भी आप सम्स कैलकुलेट, आंसर कैलकुलेट करना स्टार्ट करो कोई भी मेथड में, सो आपको वो टेबल याद हो जाना चाहिए, फॉर्मेट. ओके, सो फॉर्मेट में फर्स्ट क्या होता है? ईयर. तो यहां पे 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है. ओके, ईयर के बाद कैश फ्लो. सो प्रोजेक्ट पी कर रहे हैं ना, सो कैश फ्लो 2 lakhs, 3 lakh and the 4 lakh. Clear? Next column CE factors, that is certainty equivalent factors लेना है. ये भी सम्स में दे दिया 0.9, 0.8 and 0.7. ये तो 3 दे दिया. सो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है? एडजस्टेड कैश फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्टन कैश फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? riskless cash flow. ओके, सो 3 कॉलम्स तो दे दिया. अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एडजस्टेड कैश फ्लो. एडजस्टेड कैश फ्लो, एडजस्टेड कैश फ्लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? riskless cash flow.
रिस्कलेस कैश फ्लो, आइदर और वर्ड आप यूज कर सकते हो. नाउ एडजस्टेड कैश फ्लो, रिस्कलेस कैश फ्लो कैसे मिलता है? दैट इज मल्टीप्लाइंग कैश फ्लो विद द सी फैक्टर्स. ओके, सो हियर 2 lakhs into 0.9, that is 1,80,000. 3 lakh into 0.8, 2,40,000, and 4 lakh into 0.7, that is 2,80,000. तो ये हमारा एडजस्टेड आ गया. नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे? डिस्काउंट रेट. ओके, यहां पे डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है? याद करो, यहां पे डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है? दैट इज डिस्काउंट रेट एट ऑफ रिस्क फ्री रेट लेना है. यहां पे कौन सा लेना है? दैट इज रिस्क फ्री रेट. याद रख लेना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखना मत, खाली आपको याद करने के लिए. यहां पे कौन सा लेना है? रिस्क फ्री रेट. Now, in this sum, two rate is given. 5% is also given and 3% is also given for the confusion. So, यहाँ में कौन सा रेट लेना है? रिस्क फ्री रेट ओनली. That is government bond वाला 5%, which may be considered as what? Risk free rate. So, we have to discount the adjusted cash flow at the 5% rate. आ रहा है समझ में? तो 5% रेट कहां से आपको फाइंड आउट करना है? डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से. सो 5% पे देखना है 0.952, 0.907 एंड 0.864. 0.952, 0.907 एंड 0.864. सपोज ये टेबल वैल्यू नहीं होता तो 1/1.05, 5% है ना. देखो 0.952 इक्वल टू 0.907 इक्वल टू 0.864 आया. तो हम लोग को क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलेगा. कैसे मिलेगा? 1,80,000 इंटू 0.952, दैट इज 171,360. 2,40,000 इंटू 0.907, 217,680. 2,80,000 into 0.864, that is 241,920. So total हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो, दैट इज 630,960. क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीवी? एनपीवी इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इनफ्लो कितना आया? 630,960 और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 lakhs का है. सो हमारा आंसर आया पॉजिटिव ₹1,30,960 फॉर प्रोजेक्ट पी. Likewise, we have to calculate the NPV for project Q. Okay, so next is what? Project Q. Now same column याद रख लेना है. year 1, 2, 3. year के बाद कैश फ्लो. नो कैश फ्लो कितना दिया प्रोजेक्ट क्यू? 3 lakh, देन 4 lakh एंड देन 5 lakh दिया है. देन थर्ड कॉलम सीई फैक्टर्स, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर्स. तो यहाँ पे दे दिया 0.8, 0.7 एंड 0.6. सो हम लोग को नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है? एडजस्टेड कैश फ्लो और रिस्कलेस कैश फ्लो, आइदर और वर्ड यूज करना. सो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगी? डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%. सो हमें क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. सो हियर 3 lakh इंटू 0.8, तो कितना आएगा? 2,40,000. 4 lakh इंटू 0.7, 2,80,000. 5 lakh इंटू 0.6, 3 lakhs. आया समझ में? डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% जो हम लोग ने प्रोजेक्ट पी में लिखा वही आएगा. 0.952, 0.907 एंड 0.864. सो मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, दैट इज 228,480. मैं कर लो 240 इंटू 0.952, 228,480. then 253,960. then next में
3 lakh into 0.864, 3 lakh into 0.864, 259200, 259200. ओके, सो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना टोटल आया है 741640. सो हियर एनपीवी इज व्हाट 741640 माइनस इन्वेस्टमेंट 7 लाख है पर प्रोजेक्ट क्यू. सो रुपीज 41,640 एनपीवी आया. क्लियर. सो दोनों का एनपीवी क्लियर. सो विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, दैट इज प्रोजेक्ट पी. प्रोजेक्ट पी शुड बी एक्सेप्टेड. why project P should be accepted? Because NPV is higher. NPV is higher than the project Q. Clear? So हमारा फर्स्ट आंसर इज ओवर. Now second question, conclusion. Which project is riskier and why? Now आपको किसका पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर है. ओके, तो याद रखो कि जो आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट है यहाँ पे सीई कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या है, रिस्क लेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रिस्की कैश फ्लो. रिस्क लेस कैश फ्लो को डिवाइड करना है रिस्की कैश फ्लो. नाउ याद रखना जो प्रोजेक्ट में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम है, लोअर है, लो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है ना, वो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होता है. कैसे कि अगर रिस्की कैश फ्लो का अमाउंट हाई आएगा एज कंपेयर टू द रिस्की कैश फ्लो, तो ही आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट का आंसर लो आता जाएगा. आ रहा है समझ में. ये इनडायरेक्टली समझना है कि रिस्की कैश फ्लो सपोज हाई अमाउंट है एज कंपेयर टू द रिस्कलेस कैश फ्लो, तो आपका यहां पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का आंसर कम आता जाएगा. बट अगर रिस्की कैश फ्लो हाई है और लो है एंड द रिस्कलेस कैश फ्लो हाई है तो उसका आंसर हाई आएगा. ओके, इन शॉर्ट आपको कौन सा प्रोजेक्ट रिस्की है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, जहां पे सीई कोएफिशिएंट लो है ना, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है, रिस्की है. ओके, सो यहां पे आप देखो 987 है बट यहां पे 876 है, इट मींस प्रोजेक्ट क्यू इज मोर रिस्कियर. ओके, प्रोजेक्ट क्यू इज riskier project because or oblique since CE, that is certainty equivalent coefficient associated with its expected NPV, expected cash flow after tax is lower than project P. आया समझ में. सो उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर, तो प्रोजेक्ट क्यों ज्यादा रिस्कियर है, बिकॉज जो भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट है इट इज लोअर है एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट पी. तो कैसे डिफाइन करना है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कैसे मिलता है, रिस्क लेस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रिस्की कैश फ्लो. सो अगर रिस्क लेस से रिस्की कैश फ्लो का अमाउंट हाई आएगा तो वो केसेस में आपका सीई कम आता जाएगा. आया समझ में. तो जहां पे कम है वो हमारे लिए रिस्की प्रोजेक्ट है. क्लियर. इन थर्ड, इफ RADR मेथड इज यूज्ड then which project would be appraised with the higher rate and why? तो हम लोग ने RADR का थियरी पढ़ा था, पता है. देखो RADR का थियरी में क्या बोला, जो हाई रिस्की प्रोजेक्ट है हाई डिस्काउंट रेट आर यूज फॉर द मोर रिस्की प्रोजेक्ट. RADR का थियरी क्या बोलता है, हाई डिस्काउंट रेट यूज करना है फॉर द मोर रिस्की प्रोजेक्ट. तो यहां पे वही पूछा
कि इफ RADR मेथड इज यूज तो विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्राइज्ड विद द हायर रेट, बट बेस जो रिस्की प्रोजेक्ट है उसको हाई रेट से अप्राइज करना है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्यू को अप्राइज करना है, बिकॉज प्रोजेक्ट क्यू क्या है, आपका रिस्कियर प्रोजेक्ट है। सो प्रोजेक्ट क्यू बीइंग मोर रिस्कियर प्रोजेक्ट, ओके, would be appraised using higher discount rate if RADR method is used। ओके, तो ये कंक्लूजन वाला आंसर था कि अगर RADR मेथड यूज करेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट को हाई रेट से अप्राइज करना चाहिए। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्यू वाई, तो प्रोजेक्ट क्यू रिस्की प्रोजेक्ट है, इसीलिए उसको हायर रेट ऑफ डिस्काउंट से अप्राइज करना चाहिए इफ RADR मेथड इज यूज्ड। ओके, तो ये इतना कैलकुलेशन का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2018 में। क्लियर। सो हमारा यहाँ पे ओवर हुआ, दैट इज CE अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो।